Hello friends. So today we are going to stop a new topic. With the continuation of chapter number 1, some few points that are very important, okay, from the theoretical point of view, and from this we will end this chapter and we will start with a new chapter in next class. So let us understand some of the few points. What does that few points wants to say? Okay, business entity. The concept business implies that business unit is separate and distinct from the owners or owners. So this point wants to say that business is separate thing and the owners of the business are separate, right? So this point wants to say that business is something that is separate from the owner of the business. Who is the owner of the business? Person who supply capital to it. Okay, the person who supply capital to it is the owner of the business, and both are different thing. Okay, business is different thing and owner is different thing. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of business. Whenever any account is prepared, it is prepared from the point of view and business and not from the owner's point of view. Hence, business is liable to the owner for the capital contributed by him, her. So this point wants to say that business is liable to the owner. Why business is liable to the owner? Because business is liable to the owner because owner contributed capital to the business, right? Owner contributed capital to the business, so that's why business is liable to the owner. Okay, so it was a very basic concept. Now moving ahead, money measurement. As we can understand the term money measurement, that means only those transactions which are expressed in terms of money can be measured. Only those transactions which are expressed in terms of money can be measured are recorded in the books of accounts. Okay, so this point wants to say that any transactions which we can express in money, only those transactions are allowed to record in the books of accounts. Okay, cost concept. Okay, let us understand these points. What do you mean by cost concept? An asset is recorded in the books on the basis of historical cost. This point wants to say that any asset is recorded in the books on the basis of historical cost, that is acquisition cost. What do you mean by historical cost? हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स एक्विजिशन कॉस्ट. जिस कॉस्ट पे हमने उसे परचेज किया था, हम उस असेट को उसी कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट? जिस असेट को हमने परचेज किया था उसके ओरिजिनल वैल्यू पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज ये ईयर को, दिस इज 22, राइट? दिस इज 22 ईयर एंड सपोज हमने 2019 में कुछ परचेज किया था, राइट? एंड उस टाइम उसकी वैल्यू थी 5 लाख. ओके, सो 2019 इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. सो 2019 में जो उसकी वैल्यू थी वो क्या है? वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है. ओके, सो हमने उसे कब परचेज किया था? हमने उसे ओरिजिनली परचेज किया था 2019 में, एंड 2019 में जो जिस वैल्यू में हमने उसे परचेज किया था, डेट विल बी कंसीडर एज हिस्टोरिकल कॉस्ट. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, but is systematically reduced in the book's value by charging depreciation. So this point wants to say that it is recorded at
कॉस्ट एट द टाइम्स ऑफ परचेज करते टाइम जो इसके कॉस्ट थे हम उसे उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, एंड इट विल बी रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स हमने किसी एसेट को यूज़ किया है, राइट, हमने किसी एसेट को यूज़ किया है, तो हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती जाएगी, हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। सो जो ये वैल्यू कम हो रही है उसकी हर एक साल, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो ये चार्ज होगा एवरी ईयर, ओके, एंड उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एनी पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द अकाउंटिंग should be continuous or consistent throughout the business and it not be changed generally unless and until circumstances demand, okay. For example, a company adopt fixed installment method for charging depreciation on fixed asset from beginning till end of estimated life of asset. So ये पॉइंट ये बोलना चाहता है कि कोई भी पॉलिसी कंपनी अडॉप्ट कर रही है अकाउंटिंग पर्पज़ से, सो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द बिजनेस में, और वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। कब तक चेंज नहीं होगा, अंटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांड, जब तक हालात डिमांड नहीं करते चेंज होने के लिए तब तक वो चेंज नहीं होगा, ओके। एंड चेंज होने से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बिजनेस में, राइट, चेंज होने से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड सपोज वी आर चेंजिंग देन वी शुड डिस्क्लोज विद अ नोट, एंड सपोज वी आर चेंजिंग एनी पॉलिसी देन वी शुड डिस्क्लोज विद अ नोट, हम एक नोट देकर डिस्क्लोज कर देंगे डैट वी आर चेंजिंग सम ऑफ द पॉलिसी, ओके। कंजर्वेटिज्म, let us understand this concept, conservatism. While recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide for all possible loss. ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तब हम क्या करेंगे, कंसीडर कि प्रॉफिट नहीं हुआ है लेकिन हमने प्रोविज़न दिया है सबके सब लॉस के लिए। ऐसा क्यों? इट एनकरेज द सर्टेन सीक्रेट्स रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉस, ओके। हम सम ऑफ द सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करेंगे सो डैट वी कैन अवॉइड और वी कैन मेक प्रोविजन फॉर एक्सेस लॉस। The income statement may show lower income and the balance sheets overstate the liabilities and understate the asset, right? जब हम प्रॉफिट कम दिखाएंगे एंड लॉस हमारा ज़्यादा होगा देन लोअर इनकम शो करेगा, राइट। इनकम स्टेटमेंट क्या करेगा, लोअर इनकम शो होगा एंड बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमने कम दिखाया है एंड हमने अपना लॉसेस ज़्यादा दिखाया है, राइट। एंड हमारा असेट भी क्या होगा, अंडरस्टेट हो जाएगा, यानी कि कम वैल्यू पे हम दिखाएंगे उसे। द पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट्स, ओके। सो कंजर्वेटिज्म का इन शॉर्ट मतलब हो गया कि हमें अपना प्रॉफिट कम दिखाना है बट हमें सारे जो पॉसिबल लॉस है उनको हमें प्रोवाइड करना है, ओके। सो मूविंग अहेड, एग्जाम्पल, व्हाट इज एग्जाम्पल? सपोज क्लोजिंग स्टॉक है मार्केट में जिसका कॉस्ट है 25,000, ओके। एंड उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 35,000। सो वाइल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स हम कितने पर रिकॉर्ड करेंगे, 25,000 पर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। लोवेस्ट ऑफ ऑल, जो भी लो रहेगा मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। वाई? सो डैट वी कैन मेक एक्सेस प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड लो प्रोविजन फॉर इनकम। This point is conservatism. Moving ahead, going concern. Going concern means हम ये assume करेंगे कि कोई भी बिजनेस गोइंग है, वो बिजनेस चलता रहेगा एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। गोइंग कंसर्न से क्या होगा, इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ असेट, लाइबिलिटीज,
डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब गोइंग कंसर्न से ये होगा कि हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा एंड उसका असर हमें बाकी बाकी जगह पे जो बिज़नेस के कंसेप्ट उस पर दिखाई देंगे, राइट। जैसे कि फिक्स असेट पे दिखाई देगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे दिखाई देगा, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि ऐसा एक्सपेंस जिसे हमने एडवांस में पे किया है। अक्रूड एंड अर्नन रेवेन्यू, जो अक्रूड हुआ है लेकिन अब तक हमें मिला नहीं है, ऐसे रेवेन्यू पे दिखाई देगा, राइट। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इन शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर। बोल रहा है कि एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर। शॉर्ट पीरियड में छोटे टाइम के लिए कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इन द वैल्यू ऑफ असेट तो वो क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज रियलाइजेशन। इनकम इज रिकॉर्डेड only when it is realized, that is either it is received or earned। या तो हमें रिसीव हो चुका है या तो हमने उसे कमा लिया, ठीक है। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड और द सर्विस रेंडर। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब सेल्स आर अफेक्टेड, जब सेल्स एक्चुअली टेक प्लेस हुआ है या तो जो सर्विस हमें देनी थी वो हमने इसको रेंडर कर दी, राइट। सेल्स रेवेन्यू आर कंसीडर हैज रिकॉग्नाइज when sales are affected during accounting period irrespective of fact whether cash is received or not, ठीक है। बोला कि जो सेल्स की रेवेन्यू है वो हम कब रिकॉर्ड करेंगे, वो हम तभी रिकॉर्ड होगा जब सेल्स अफेक्ट हुआ है, भले पैसा हमें मिला है उस वक्त या नहीं मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी को ऑर्डर आया था 1 लाख का इन May 17, ये सिर्फ ऑर्डर था, राइट, ये सिर्फ ऑर्डर आया था। बट गुड्स कितने का गया, ओनली 60,000 का गुड्स डिलीवर हुआ इन June 17। ऑर्डर था कितने का, ऑर्डर था हमें 1 लाख का, राइट, एंड गुड्स कितने का डिलीवर हुआ 60,000 का इन June 17। सो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, हम 60,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। कैश इज रिसीव्ड फॉर ₹60,000 इन June 17 एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। सेल्स इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन June 17, ओके। सेल्स कब रिकॉर्ड होगा, June 17 में ही रिकॉर्ड होगा, जब एक्चुअल ऑर्डर आया, जब एक्चुअल सेल एग्जीक्यूट हुआ, जब ऑर्डर आया तब नहीं, राइट, बिकॉज ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर ही मुँह ज़बानी बातें हो गई, एंड सेल्स जब एक्चुअली टेक प्लेस किया तो क्या हो गया, ये एक्शन हो गया, राइट। सो जब एक्चुअल हमने डिलीवर किया गुड्स को देन ओनली वी विल कंसिडर कि हाँ हमारा सेल हुआ है। ऑर्डर आने से सेल नहीं होता है, जब गुड्स डिलीवर हुआ, जब गुड्स अगला लेके गया तब सेल होता है, ओके। सो सेल्स इज टू बी रिकॉर्डेड इन June 17। अक्रूवल, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज यानी कि अर्न, एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्रू बिकम पेबल, राइट। इनकम मिला नहीं है, मिलने वाला है, ठीक उसी तरह एक्सपेंस, राइट, हमने अभी दिया नहीं है बट इन फ्यूचर देना होगा, राइट, और इसका प्रोविज़न हम अभी लेके चलेंगे, ओके। ऑल एक्सपेंस आर रेवेन्यू रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट रेवेन्यू आर रिसीव इन कैश और नॉट, एक्सपेंस आर पेड इन कैश और नॉट, ठीक है। ये बोलो कोई भी इनकम हमें मिलने वाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स हुआ है हमारा, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेल्स हुआ है, राइट, सेल्स हुआ है क्रेडिट पे, पैसा कब मिलेगा, पैसा मिलेगा आफ्टर 2 मंथ, राइट। भले पैसा आफ्टर 2 मंथ मिलेगा लेकिन गुड्स तो डिलीवर हो चुका है, सो गुड्स डिलीवर होते ही हमारा क्या हो गया, हमारा सेल्स का एंट्री पास हो गया, ओके। डैट मीन्स हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो इसको बोलते हैं अक्रूड, मीन्स मिला नहीं है, मिलने वाला है, ओके। ठीक उसी तरह सेम वे इट्स लाइक एक्सपेंस, ओके। सपोज हमने
कोई भी एक्सपेंस है, एग्जांपल के फॉर एग्जांपल सपोज हमने कुछ परचेज़ किया, राइट, एंड उसको हमें 2 महीने बाद देना है, उस अमाउंट को हमें 2 महीने बाद देना है, राइट, यानी कि गुड्स हमारे पास क्या हुआ है, डिलीवर हो चुका है, हम उसे एक्चुअली रिसीव कर चुके हैं गुड्स, राइट। सो जो चीज़ 2 महीने बाद देनी है तो उसका हम प्रोविज़न अभी से लेके चलेंगे, राइट। उसकी हम बुक्स में एंट्री कर देंगे कि ये अभी भी पेएबल है, ताकि एक एक्चुअल हमें फिगर मिल सके, राइट। सो इसकी प्रोविज़न हम अभी से कर देंगे। सो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेंस अक्रूड, राइट। सो इनकम भी अक्रूड यदि हुई है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, एंड एक्सपेंस अक्रूड हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, ओके। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल। डुअल एक्सपेक्ट मीन्स कि हर एक चीज़ के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ 2 एक्सपेक्ट, दैट इज़ डुअल एक्सपेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम है तो किसी का क्या है, वो खर्चा भी तो है, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर, है ना, सपोज ए सेल्स कर रहा है एंड बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। सो ए की क्या है, इनकम है, बट बी का क्या है, बी का एक तो एक्सपेंस है, राइट। ए के पास कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है। सो बी के पास से क्या हो रहा है, बी के पास से कैश जा रहा है, राइट। ए के पास से गुड्स जा रहा है, ए के पास से गुड्स जा रहा है। सो बी के पास क्या हो रहा है, बी के पास गुड्स आ रहा है, राइट। सो हर एक चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक इम्पैक्ट नहीं होता, राइट। ए ने गुड्स बेचा तो सिर्फ गुड्स नहीं बेचा, सिर्फ उसने गुड्स नहीं सेल किया, उसको कैश भी मिला, ओके। और बी ने गुड्स परचेज किया तो उसने सिर्फ गुड्स परचेज नहीं किया, उसने कैश भी दिया, राइट। सो हर एक चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, हर एक चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं ना एंट्री में। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डुअल एक्सपेक्ट, ओके। दिस पॉइंट इज कॉल्ड डुअल एक्सपेक्ट। डिस्क्लोजर, द अकाउंट मस्ट बी डिस्क्लोज ऑल मटीरियल इन्फॉर्मेशन। मटीरियल इन्फॉर्मेशन मीन्स ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन टू द related parties. The financial position and performance should be disclosed very honestly to all the user. The financial position means the balance sheet of the business, and the financial performance means business result in terms of profit or losses and income and expense. So in short ये बोलना चाहता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन मीन्स जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बैलेंस शीट पे, सो वो डिस्क्लोज होना ही चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज होना चाहिए। कितना इनकम हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, ओके, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो हर एक चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए। मटेरियलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है कि हर एक चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल है। मटेरियल मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट को। अब कोई भी सपोज एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, सपोज एक कंपनी है ABC, एक कंपनी है ABC, उसका बैलेंस शीट होगा एंड P&L होगा, राइट। अब इसके यूज़र कौन हो गए, इस कंपनी के बैलेंस शीट एंड P&L के यूज़र कौन हो गए, बैंक हो गए। बैंक लोन देने से पहले बैलेंस शीट एंड P&L दिखेगी, राइट। शेयर होल्डर्स हो गए, है ना। क्रेडिटर्स भी हो गए, जो कंपनी को क्रेडिट पे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो भी चीज़ को करेंगे कंसीडर। सो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए एक तरह से यूज़र हो गए बैलेंस फिनेंशियल स्टेटमेंट के, राइट।
सो ये भी होंगे कंसिडर। सो जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, मटेरियल यानी कि जो इफ़ेक्ट कर सकती है बैलेंस शीट को, वो सब डिस्क्लोज होना चाहिए। इन अदर वर्ड जो भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ तो P&L में एंड बैलेंस शीट में होनी ही होनी चाहिए, राइट। सपोज़ कहीं अच्छी इनकम है तो उसे भी डिस्क्लोज होना चाहिए, है ना। कहीं इनकम अच्छी है तो उसे भी डिस्क्लोज करो, सो डैट वो इम्पैक्ट उसका अच्छा रहेगा। एंड कहीं फ्रॉड हुआ है कंपनी में, सो उसे भी डिस्क्लोज करो, राइट। तो ये दोनों चीज़ फॉर एग्जांपल है, दोनों चीज़ मटेरियल है यानी कि इम्पॉर्टेंट है, ये इफेक्ट कर सकती है, इनका इन्फ्लुएंस है बैलेंस शीट पे। सो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल है वो डिस्क्लोज होगी बैलेंस शीट में, ओके। सो ये पॉइंट का बोलने का ये मतलब है। मैचिंग कंसेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैचिंग कंसेप्ट। According to this concept, revenue during an accounting period are matched with expense incurred during that period to earn the revenue during the period। ये बोल रहा है कि जो भी हमारे रेवेन्यू है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो भी एक पीरियड का रेवेन्यू है, नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, एंड होता है, सॉरी, राइट। सो बोला अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विथ एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। बोला है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों मैच होना चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड में, सो डैट हमें मालूम हो सके कि कितना एक्चुअल हमारा रेवेन्यू हुआ है कि नहीं। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अक्रूवल यानी कि भले हमें पैसा कल देना है लेकिन आज ही हमें हमारी लायबिलिटी राइज हो चुकी है, तो वो हो गया अक्रूवल कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्स द टाइम फ्रेम for measuring performance and determining financial status. All expenses are paid during the period are not considered, but only expense related to the accounting period are considered, right। बोला कि सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सपेंस हुआ है हम वही करेंगे कंसिडर, जो इसके बाहर का एक्सपेंस हुआ है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडजस्टमेंट कंसेप्ट, एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड एंड अनअक्रूड रेवेन्यू। बोल रहा है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमें सपोज नेक्स्ट ईयर पे करना है, बट उसका एक्सपेंस आज ही राइज हो चुका है तो हमें वो भी पे करना है। एंड प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स नेक्स्ट ईयर की खर्चे हमने अभी पे कर दिए तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू, अक्रूड हुआ है बट अब तक मिला नहीं है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। अनअर्न्ड है यानी कि हमने अब तक उसे कमाया भी नहीं है, वो भी रिकॉर्ड होगा। ऑल्सो ड्यू प्रोविजन आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड। हम प्रोविजन भी लेके चलेंगे, फिक्स असेट का प्रोविजन, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन। बैड डेब्ट्स यानी कि ऐसे पैसे जो हमें अब मिलने वाले नहीं है, ओके, ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड। सो दिस वर सम ऑफ द कंसेप्ट जो कि थियरी का पार्ट था। And with this we end this chapter and we will move further for the next chapter in the next class. So take care, we'll see you in next class.